Students, now next topic is AC generator. It can also be said that EMF due to the rotation of the coil. यहाँ पे इस coil के rotation के कारण आपका यहाँ पे EMF generate होगा. Clear? कैसे generate होगा? आप suppose करिए this is your plane surface, all right? Like this, है ना? इस तरीके से आपका plane है और ये इसको हमको rotate कराना है, ठीक है? Just like this. So we all know that any coil, क्योंकि आपको लेफ्ट हैंड रूल तो पता है ना, तो लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है कि if this is the direction of magnetic field, है ना, this is the direction of moving charge, this will be direction of force, एक उसमें फोर्स लगता है ना. तो और एक चीज आपको पहले से ही पता है, एक चीज और भी पता है कि this flux dependent on BA cos थीटा. इस फ्लक्स की वैल्यू हमको कब मिलेगी? जब ये थीटा क्या हो, जब आपका थीटा जो वैल्यू है that is forming 0 degree or 180 degree with this, है ना, this area vector of this surface. तो area vector इसका कैसा होता है? Like this, है ना, perpendicular to the surface. So इस surface का एक area vector होगा. This is area vector, alright. So if इस surface का कुछ area vector होगा, definitely it will form some angle with the magnetic field. यदि एंगल फॉर्म किया इसने मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो कुछ इसकी वैल्यू होगी एंगल की, और हमको वैल्यू कब मिलेगी? जब आपका थीटा क्या हो, when थीटा इज 0 और 180 डिग्री, तभी आपको कॉस की वैल्यू मिलेगी. अदरवाइज 90 हो गया या फिर 360 हो गया, यू विल नॉट गेट 270 हो गया, यू विल नॉट गेट एनी वैल्यू ऑफ इट. समझ क्लियर है ना आपको? तो ये दिस हियर जो आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करना चाह रहे हो, यहां से कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जा रही है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, बट यू वांट टू चेंज द मैग्नेटिक फील्ड. जो फ्लक्स इससे लिंक हो रहा है, बिकॉज़ वी नो दैट EMF is only produced when there is a change in the flux. EMF is related to change, all right? E is equals to minus d phi by dt as already stated by the Faraday's law. So if we want to change this angle, we can change the magnetic field. I already told you these three things, very important things, that if you change any of these three, we are changing this flux. So if we want to change this flux, we have to rotate this coil. यदि हम इस coil को rotate कर पाए, तो इससे क्या होगा? ये angle change होता जाएगा. Angle between B and A will change. So if we'll have the rotation like this, so when this angle between this B and A surface, है ना, जैसे आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सपोज करिए ये है ना, और लेट मी से दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड यू आर गिविंग, है ना, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड यू आर गिविंग, ऑलराइट, दिस इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है. सो यू विल हैव द एरिया वेक्टर ऑफ इट. यदि कुछ इस तरीके से होगा तो ये इट विल फॉर्म 90 डिग्री, है ना, विद मैग्नेटिक फील्ड. सो योर दिस टर्म विल वैनिश. और यदि ये कुछ इस तरीके से हो गया और आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो इसका जो ये नॉर्मल होगा, इसका जो एरिया वेक्टर होगा, दैट विल बी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड. सो यू विल गेट सम वैल्यू ओवर देयर, मैक्सिमम वैल्यू व्हेन थीटा इज 0, है ना. लेकिन जब इसका रिवर्स हो गया, कुछ इस तरीके से हो गया, आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इसका एरिया वेक्टर इधर साइड है ना, तो उस केस में यू विल फॉर्म 90 डिग्री विद इट. सो देयर आर टू कंडीशंस. Your polarity will change, all right? So in the different scenarios, we'll have the different values of this magnetic flux. So that means we are changing the flux. यदि magnetic flux change हो रहा है, तो definitely it will have an induced EMF. कुछ इसमें induced EMF होगा, ठीक है. यदि इसमें कुछ induced EMF create हो गया, तो यदि हम इसको किसी सर्किट से कनेक्ट कर दें, किसी रेजिस्टेंस के थ्रू, किसी लोड के थ्रू, ठीक है, you will get current as well. यदि EMF है, यदि आपका सर्किट क्लोज आपने कर दिया, तो you can also get current, all right? So please remember this. So this is all about generating the EMF in the coil. So let us see that EMF due to the coil, क्योंकि हमने जब रोटेशन किया इस coil का, तो we got different values of flux at different angles. So if we have the different flux for the different values, we have got this expression, as you know, that NBA for n number of turns.
So this phi is equals to NBA cos theta as already stated by me, and this is the thing that was told you for to understand. All right. So now this phi is equals to NBA cos theta. So this theta is playing the role because of the rotation. जब हम किसी भी कॉइल को रोटेट करेंगे एंगल चेंज होगा, है ना, तो उससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा. आप कई तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स, यदि आप मैग्नेट को मूव करा रहे हो यू कैन आल्सो चेंज मैग्नेटिक फील्ड. यदि आप कंडक्टर को मूव करा रहे हो और कैन आल्सो चेंज मैग्नेटिक फील्ड. यदि कंडक्टर को रोटेट करा रहे हो देन यू कैन आल्सो चेंज दिस मैग्नेटिक फ्लक्स. देयर आर थ्री वेज. ऑलराइट. सो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एस गिवन बाय, और यदि ये मूव कर रहा है, यदि आपका कॉइल मूव कर रहा है तो डेफिनेटली देयर मस्ट बी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इट. सो एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन बाय थीटा बाय टी, और थीटा को हम निकाल सकते हैं, ये जो थीटा एंगल है इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा इनटू टी. यू ऑलरेडी नो वेरी वेल. सो ड्यू टू द रोटेशन फ्लक्स कीप ऑन चेंजिंग. अब जब रोटेशन हो रहा है तो मैंने बताया फ्लक्स चेंज होगा, और यदि फ्लक्स चेंज होगा तो दोस्तों क्या होगा, यू विल पुट दिस वैल्यू. व्हिच वैल्यू? यू विल पुट दिस dy dt. phi की वैल्यू क्या है? this NBA cos theta. NBA cos theta. So when you put this value you can, okay, so when you have this thing you just put the value of this theta equals to omega t. all right. So then this will be the function of t. हमको इसको t का फंक्शन बनाना है, so हमको थीटा की वैल्यू पता है तो ओमेगा t हमने रख दिया यहाँ पे. ठीक है. So when you differentiate it what will you get? This NBA तो बाहर निकल जाएगा. NBA cos थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, है ना. आपको डिफरेंशिएशन तो पता है, इसका क्या आ जाएगा बाहर? t आ जाएगा. t आएगा कि ओमेगा आएगा? ओमेगा आएगा. सॉरी, ठीक है, ओमेगा आएगा, क्योंकि डिफरेंशिएट करने पे जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो एक और टर्म आएगा ओमेगा टी. ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करोगे तो यू विल गेट ओमेगा ओनली. दिस इज व्हाट टू बी. तो यदि sin ओमेगा टी हुआ तो ये प्लस हो जाएगा ना. cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस sin ओमेगा टी. सो यू हैव गॉट दिस. दैट मींस योर EMF value is depending on NBA omega sin omega t. sin omega t. इतना क्लियर? तो NBA omega sin omega t आपकी इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? when you will get the maximum EMF. यदि आपका ये ओमेगा टी जो थीटा है, यदि EMF की जब बात कर रहा हूं मैं, EMF का केस, EMF कब ज्यादा होगा? जब ये sin ओमेगा टी, मतलब यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है यहाँ पे जब 90 डिग्री हो जाएगी. आप समझ पा रहे हो ना? जब ये रोटेशन करेगा और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 डिग्री हो जाएगी, या फिर है ना 270 डिग्री हो जाएगा. तो इस केस में आपको EMF जो है वो मिलेगा. ठीक है, EMF मिलेगा. मैक्सिमम कब मिलेगा? जब ये 90 डिग्री होगा. वी ऑलरेडी नो दिस, है ना. तो फ्लक्स कब चेंज होगा आपका? फ्लक्स तब चेंज होगा जब ये थीटा जो होगा वो 0 डिग्री, मतलब कि इसका जो एरिया वेक्टर है दैट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड. लेकिन EMF ज्यादा कब मिलेगा आपको? जब आपका sin ओमेगा टी मैक्सिमम होगा. दैट मींस दिस एरिया वेक्टर एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड हैविंग द एंगल 90 डिग्री, है ना. तो उस केस में आपको EMF ज्यादा मिलेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट. और यदि EMF अपने को 0 का मिलेगा जब आपका एंगल 0 बने, है ना. सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. यदि आप मैग्नेटिक फील्ड इधर दे रहे हो तो एक इंड्यूस्ड जो करंट जनरेट होगा इसमें, जिसको बोलते हैं एडी करंट, दैट विल जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड, है ना. इंड्यूस्ड करंट का भी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन कैसी होगी? दैट इज अपोजिट टू दिस डायरेक्शन. जो ये वाला जो जनरेट करेगा, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं. जो इसमें करंट जनरेट होगा वो जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा दैट विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दिस. दैट विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दिस. तो इसके जो इफेक्ट वो क्या करेगा? वो कम करने की कोशिश करेगा. ये ध्यान रखिएगा. ठीक है. सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. लेट मी टेल यू अबाउट द एडी करंट आफ्टर दिस. So you will have a very good picture of all these kind of things. All right. Eddy current is very important to understand. Students, जैसा आपको समझ में आया कि when there is change in the induced change in the magnetic flux linked with this coil, definitely there is an induced EMF, and because of the induced EMF, if the circuit is closed, you have
the induced current. Induced current is not but eddy current, that is eddy current. All right. So in this we find that the induced EMF being generated in the coil that has such kind of behavior, that is has AC kind of behavior. What kind of behavior? AC kind of behavior, alternating current kind of behavior. So जनरली हम कॉमर्शियल जो जनरेटर्स यूज करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को हम क्या करते हैं, चाहते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि डैम्स है ना, जैसे बहुत सारे डैम्स बनते हैं, तो डैम्स क्या करते हैं, उसकी मैकेनिकल एनर्जी जो वाटरफॉल होता है उसको मैकेनिकल एनर्जी है, तो मैकेनिकल एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. सो mechanical energy required for the rotation of the armature, this is armature. All right. So mechanical energy required for the rotation of the armature is provided by the water falling from the height. यदि इसको हमको रोटेट कराना है तो हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा सोर्स यूज करेंगे जिसका कोई यूज नहीं हो रहा है. अब जैसे वाटर फॉल हो रहा है तो उसका आप यूज नहीं कर पा रहे हो ना, उसकी एनर्जी तो वेस्ट हो रही है. तो क्या आइडिया लगाया गया कि इस आर्मेचर को यदि हम रोटेट कर पाए किसकी मदद से, इस मैकेनिकल एनर्जी की मदद से, दैट मींस वाटर फॉलिंग फ्रॉम द हाइट. तो वी यूज दिस मैकेनिकल एनर्जी टू रोटेट दिस कॉइल. कोल तो लगे रहेंगे ना, हमको रोटेट तो इसको कराना है, तो रोटेट हम किससे कराएंगे, वाटर फॉलिंग फ्रॉम हाइट. तो यदि ये रोटेट होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और जब फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होगा तो फिर उसके बाद हम इसको यदि क्लोज्ड लूप बना दे रहे हैं तो वी कैन गेट द करंट. क्लियर बात. तो हाउस होल्ड में जो सप्लाई वगैरह होते हैं, दैट इज ऑल. सो अंडरस्टूड. सो डैम्स अब एग्जांपल मैं बताया कि जनरली हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स जो हम जनरली फॉर्म करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, वो इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं. प्रिंसिपल इज द सेम. You have this coil armature in between the two poles, north pole, south pole, and you are just changing the flux by rotating the coil, and you are getting induced EMF, and because of which opposes the change, and that induced EMF generates an electric current, है ना, or electric current will generate a magnetic field, but that will mean opposite direction of this applied magnetic field. Clear? तो हमको अभी इतना ही समझना है, और इसके बाद आप देखिए थोड़ा सा हम और इसको और डिस्कस कर लेते हैं. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट हुआ इसमें, और जो हम जनरली करंट यूज करते हैं अपने हाउस होल्ड्स में बिकॉज ऑफ हाइड्रो, है ना, हाइड्रो पावर जो हम जनरेट करते हैं. सो यू मस्ट हैव अ थॉट दैट इज देयर एनी फेज डिफरेंस और these two things are in the phase with each other. The induced EMF and induced current क्या दोनों फेज में हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, दोनों कंडीशन हो सकती है. क्लियर. तो डिपेंड्स ऑन कंडीशन. सो हियर इन दिस कंडीशन वी आर फर्स्ट सीइंग दैट आवर इंड्यूस्ड EMF इज बीइंग क्रिएटेड. अब जो फ्लक्स चेंज हो रहा है उसके कारण क्या क्रिएट हो रहा है, इंड्यूस्ड EMF क्रिएट हो रहा है. तो इंड्यूस्ड EMF पहले क्रिएट हो रहा है, और इंड्यूस्ड EMF क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा एनर्जी चार्जेस को, तो उसके कारण करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा. क्लियर. तो क्या जरूरी है कि जैसे ही यदि ये जीरो पे है इंड्यूस्ड EMF, क्या ये इस चार्ज को एनर्जी दे सकता है, नहीं दे सकता. तो एक कुछ रेंज तक, कुछ टाइम तक ये क्या कर सकता है, अपने आप को थोड़ा बिल्डअप करेगा, जो EMF है बिल्डअप करेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, चार्जेस को एनर्जी प्रोवाइड करना स्टार्ट करेगा. तो उससे के बाद करंट आपकी फ्लो होना स्टार्ट होगी. और जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ते थे क्या होता था, यू वर प्रोवाइडिंग द करंट टू इट, है ना, करंट दे देते थे, फिर उसके बाद जो कुछ भी जनरेट होता था, EMF जनरेट होता था, है ना, उस तरीके से होता था. तो लेकिन यहाँ पे वी हैव द डिफरेंट सिनेरियो. हियर वी आर फर्स्ट गेटिंग द EMF एंड देन आफ्टर वी कैन गेट द करंट प्रोवाइडेड बाय दिस EMF. क्लियर बात इतनी. तो आप देख पा रहे हो कि इस करंट और इंड्यूस्ड करंट और इस इंड्यूस्ड EMF के बीच में फेज डिफरेंस कितने का है, बताओ. यहाँ पे फेज डिफरेंस कितने का है, पाई का. फेज डिफरेंस यहाँ पे कितने का है, दिस इज पाई का. यहाँ पे फेज डिफरेंस कितने का है, आप देख पा रहे हो, यहाँ से देखो, दिस इज ऑफ. सो फेज डिफरेंस ऑफ पाई. सो इट्स नॉट नेसेसरी दैट इट मस्ट ऑलवेज बी पाई, है ना. It can also be some different value depending on the different conditions. All right. So this is all about the induced EMF and induced current. Remember this thing. It's not necessary that the induced EMF and induced current should be in the phase. They can be in the different phases as well. Clear? Depending on the condition. अब एक चीज मैं आपको और समझाता हूँ. Students, we now talking about
eddy current when bulk pieces of the conductors, like if you have this copper plate, so the bulk pieces of the conductors are subjected to the changing magnetic field. यदि suppose करो कि यहाँ पे जो change हो रहा है magnetic field उसको किसके कारण हो रहा है? Because of change in this, है ना? क्योंकि ये मोशन कर रहा है आपका ये जो प्लेट है, आप इस तरीके से पेंडुलम के जैसे मोशन कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो आप देखते हैं आगे क्या होता है। तो जब आप सब्जेक्ट कर रहे हो इस रीजन में, तो देयर इज चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, सो इंड्यूस्ड करंट आर प्रोड्यूस्ड इन देम। तो एक इंड्यूस्ड करंट इस कॉपर प्लेट में जनरेट हो जाएगी। और कैसा होगा उसका नेचर? हाउएवर देयर फ्लो पैटर्न्स रिसेंबल विद, और जो उनका फ्लो पैटर्न होता है ना, वो किस तरीके, जैसे पानी में भंवर नहीं आती उस तरीके का आपका यहाँ करंट देखने को इसमें मिलता है। समझ आ रहा है? जिस तरीके से पानी में आपको एक पत्थर डाल दो, सपोज एक पत्थर डाला पानी में, तो क्या होता है, एक भंवर टाइप का जनरेट होता है ना, इस तरीके से वेव्स टाइप का। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो एडी करंट का नेचर होता है कुछ उसी तरीके का होता है, swirling eddies in water. So this effect was discovered by physicist Foucault in 1819 and it up to 1868, and these currents are called eddy currents. इन करंट्स को क्या बोला जाता है? जो जिनका बिहेवियर कुछ भंवर के जैसा होता है पानी में जैसे, तो उसको बोलते हैं अपन एडी करंट। क्लियर? तो चलिए इसको समझते हैं कि किस तरीके से करंट जनरेट होता है इसमें, ठीक है। सो देयर इज, जैसे ही इस रीजन में एंटर करना स्टार्ट करेगा, इसमें चेंज होगा एकदम से मैग्नेटिक फ्लक्स। हाँ, सपोज करिए पहले इसमें जीरो फ्लक्स था, लेकिन जैसे ही इस रीजन में आने लगेगा क्या होगा, कुछ रीजन में आते ही इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या करेगा ये इंड्यूस्ड ईएमएफ, फिर इंड्यूस्ड करंट इसमें जनरेट हो जाएगा। लेकिन डायरेक्शन इसका कुछ किस तरीके से होगा? यदि आपकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से, तो जो इसमें करंट जो जनरेट होगा इस कॉइल में, वो कुछ इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है कि इसके हमेशा क्या करेगा, इस चेंज को क्या करेगा, वो अपोज करेगा। तो इस करंट के कारण जो एंटी करंट जनरेट हो रहा है, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, दैट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन टू दिस मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी इस कॉइल के कारण, इस जो कॉपर प्लेट हमने लिया है, जो इसमें एंटी करंट जनरेट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसके, तो क्या करेगा, दैट विल जनरेट आल्सो मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट इज गोइंग टू अपोज इट। तो इसको क्या करेगा, वो अपोज करेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो एक दूसरे के क्या हो गए, ये अपोज करने लगे। तो ये कहेगा तुम भैया मेरे यहां मत आना, और ये बोलेगा हम तुम्हारे यहां नहीं आएंगे, ठीक है। ये प्लेट को क्या करने लगेगा, कुछ रीजन में आते ही इसमें ईएमएफ जनरेट होगा, करंट जनरेट हो जाएगा, इंड्यूस करंट। तो ये क्या बोलेगा, ये वाला रीजन बोलेगा कि हमारे रीजन में तुम मेरे घर में मत आना, ठीक है। ये भी बोलेगा कि मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या हो जाता है कि वो क्या हो जाता है कि यहाँ पे धीरे धीरे आ जाता है। लेकिन क्या हो जाता है कि जिस सपोज करिए एक सेकंड में पहले 5 बार आता था, तो अब कितनी बार आएगा, 2 बार 3 बार, क्योंकि उसको यहाँ पे अच्छा व्यवहार नहीं मिल रहा है। उसको क्या करता है, ये जो रीजन है उसको क्या करता है, इसके बिहेवियर को क्या करता है, अपोज करता है। ये एक दूसरे को अपोज करते हैं। समझ में आ रहा है आपको? लेकिन जैसे ही ये वाला जो आपका प्लेट है इस रीजन में आएगा, इस मैग्नेटिक फील्ड से जैसे ही वो बाहर निकलेगा, ठीक है, कुछ तो फोर्स होंगे ना, ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण वो धीरे धीरे तो आ जाएगा ना इस फील्ड को बाहर करके। तो इसमें जो अब जो डायरेक्शन होती है, इस when this copper plate has swing out of this region, then you will have a different kind of current that will be in clockwise direction. तो यदि आपका ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है और आपका डायरेक्शन जो है, आपका करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो गया, इस जैसे इस रीजन से बाहर निकलता है, इसका जो करंट का डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज में हो जाता है। इट्स अ बिहेवियर, इट्स अ प्रॉपर्टी, ऑलराइट। तो जब इसका डायरेक्शन ऐसा है तो क्या होगा, when it will have this direction, so it will, so ये क्या करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इसको क्या करेगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रही है इसको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। समझ में आ रही है बात? तो जैसे ही इस रीजन से वो प्लेट बाहर निकलेगा, जो उसमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होगी, दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो डायरेक्शन होगी और जो उससे इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा, उसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। कुछ इस तरीके से आप समझ पा रहे हो? और उसके कारण जो हमको डायरेक्शन पता है इस थंब रूल से,
तो it will be the direction of magnetic field. So it is going, this applied magnetic field is going to support it. मतलब कॉमन सेंस में ये समझे, तो पहले तो ये आने नहीं देगा, कहेगा मेरे घर मत आना भैया। अब जब आ ही गए हो तो आप बाहर में मत जाओ, है ना। जब आ ही गए हो तो मेरे रीजन से आप बाहर नहीं जा सकते। तो जब ये घर से बाहर जाने लगता है, ये वाला जो कॉपर प्लेट है, इसके घर से जब बाहर जाने लगता है तो ये क्या करता है, भैया मेरे घर से मत जाओ, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, इसका बिहेवियर एकदम से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, दोनों का बिहेवियर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये भी बोलता है हाँ भैया हम तुम्हारे घर से नहीं जाएंगे, ये भी बोलता है तुम मेरे घर से मत जाओ, समझ रहे हो ना। इस रीजन में क्या था कि एक दूसरे को क्या करते थे, अपोज कर रहे थे, समझ में आ रहा है। लेकिन अब ये क्या करता है कि ये इसके घर से जाना चाहता है, इस रीजन से वो जाना चाहता है, कौन सा, ये प्लेट जाना चाहता है। लेकिन ये जो इंड्यूस, जो आपका ये जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है, वो क्या करता है कि इसको क्या, जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है, वो क्या चाहता है कि आप मेरे रीजन को छोड़ के मत जाओ, बिहेवियर एकदम चेंज हो जाता है। क्लियर बात। तो एक तो पहले आने नहीं देगा और दूसरी बार जाने नहीं देगा, समझ गए। तो ये क्या करता रहता है, इसी रीजन में ऑसिलेट करते रहेगा, ठीक है। तो बस, लेकिन इस रीजन में आते समय क्या होता है, डैम्पिंग होता है, और फिर इसके बाद फिर से है ना वही प्रोसेस चालू हो जाती है। तो देयर इज अ डैम्पिंग, है ना। जब ये पिवोट, जब ये आपका जो कॉपर प्लेट है इस रीजन से मूव करेगा तो दो टाइप की इसमें एडी करंट जनरेट होगी, है ना। तो ये आपको दिख रहा है, एडी टाइप का दिख रहा है ना। तो ये स्वर्लिंग इस टाइप का होता है, इस तरीके से, है ना, कुछ इस तरीके से, समझ पा रहे हो। तो दिस इज ऑल अबाउट एडी करंट, समझ पा रहे हो ना, कि जब एंटर होता है तो इसके में जो इंड्यूस करंट होगा, जो ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की जनरेट करेगा, दैट विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जैसे ही इस रीजन से बाहर निकलेगा, इट विल हैव सम डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर, यू कैन सी हियर, है ना। तो ये क्या करेगा, इसको बाहर जाने से रोकेगा और कहेगा भैया, और इसको क्या करेगा, इसको सपोर्ट करेगा, इसको जो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है और इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड दे विल बी इन द सेम डायरेक्शन, सो दे आर गोइंग टू सपोर्ट इट। Clear? So they are not going to oppose it. This is the basic idea behind this eddy current. तो eddy current अच्छी है कि खराब है, ये भी सोचने वाली बात है। तो eddy current से बहुत सारे हीट का लॉस होता है, बहुत सारी चीजें, है ना। तो हीट का जो आपका जो eddy current, जो इसमें करंट जनरेट होती है, वो क्या जनरली हीट प्रोड्यूस करता है, रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो समवेयर इट इज यूजफुल। साइंस का कोई फिनोमेना जो है वो डिपेंड करता है इंसान के ऊपर कि वो किस तरीके से उसको यूज करता है, ठीक है। तो इट इज आल्सो यूज्ड फॉर सम वेरी गुड पर्पसेस एज वेल। जैसे हमको अलॉयज बनाना है, जैसे है ना मेटल को पिघलाना है, अब सपोज करिए मेल्टिंग पॉइंट उसका 1500 टू 2000 डिग्री सेल्सियस है, तो यदि हम उसको पिघलाना चाहते हैं तो हम नॉर्मली उतना टेम्परेचर तो दे नहीं सकते। तो दिस एडी करंट कैन हेल्प देयर टू इंक्रीज द टेम्परेचर। आप ट्रेन का बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देता हूं मैं, कि जब आप ट्रेन को स्टॉप करना होता है, आप जो आजकल की जो इलेक्ट्रिकल ट्रेन होती हैं उसमें बहुत बड़े बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे होते हैं व्हील के पास। तो जैसे ही हमको स्टॉप करना होता है ट्रेन को, तो हम एकदम से करंट इसको प्रोवाइड कराते हैं। एकदम से करंट प्रोवाइड कराओगे तो क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, है ना। और क्योंकि ट्रेन तो मोशन में है ना, तो जब ट्रेन मोशन में है तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब मैंने क्या बताया मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कब होता है, व्हेन एनी कंडक्टर इज इन द मोशन और मैग्नेटिक फील्ड इटसेल्फ चेंजिंग। सो बट यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही, तो चेंज कैसे हो पाएगी, जब आपका ट्रेन मूव करेगा। तो जब ट्रेन मूव कर रहा है तो उसके कारण क्या होगा, जो हमने मैग्नेटिक, जो करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है व्हील के पास, वो क्या होगा, चेंज होगा। तो उससे कारण क्या होगा, एंड बिकॉज ऑफ द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द व्हील, इट विल जनरेट एन एडी करंट। जब वो एडी करंट जनरेट करेगा तो दैट एडी करंट हैज अ प्रॉपर्टी टू अपोज द चेंज। क्या है उस प्रॉपर्टी, क्या है एडी करंट की, दैट अपोजेस द चेंज। सो उस क्या होता है, ट्रेन स्टॉप हो जाती है। समझ में आ रहा है आपको। तो ये बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स है, बहुत अच्छे अच्छे एप्लीकेशंस है एडी करंट के, आप और भी बुक में सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। क्लियर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज obtain the expression for the magnetic energy stored in a solenoid। किसी भी सोलेनॉइड में कितनी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो रही है उसको हमको निकालना है इन द टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
एरिया एंड लेंथ, ठीक है, ऑफ द सोलेनॉइड। और दूसरा हमको बोला है कि हाउ डज दिस मैग्नेटिक एनर्जी कंपेयर विद दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक energy stored in a capacitor. So let me tell you one thing. When we were studying the self-inductance of the solenoid, let us let me tell you give you some brief introduction about this. When you have this this changing current in the solenoid, you had an expression. मैंने पहले ही चीज बताया था कि जब आपका चेंज हो रहा है करंट में, तो डेफिनेटली जो मैग्नेटिक फील्ड ये जनरेट करेगा, दैट विल आल्सो, जो मैग्नेटिक फील्ड ये जनरेट कर रहा है, that is also the changing magnetic field lines. So these changing magnetic field lines will generate an induced EMF, and it will be such that will oppose this change, है ना, इस चेंज को अपोज करता है। आपको इतनी बात क्लियर हुई? तो यदि हम इसको देखें तो यार इससे एक चीज समझ में आ रहा है कि जो इंड्यूस्ड EMF क्रिएट होगा, दैट इज गोइंग टू अपोज दिस चेंज इन द करंट। और यदि इस चेंज को अपोज कर रहा है वो, तो हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा। वी हैव टू डू सम वर्क टू ओवरकम दिस। हमको इस करंट को इसमें तो फ्लो कराना ही है ना, तो इसको फ्लो कराने के लिए हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट दिस, क्योंकि EMF जो इंड्यूस हुआ है इसमें, दैट इज अपोजिंग दिस करंट, इस करंट को जाने नहीं देगा आगे, समझ रहे हो ना। तो हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा पर यूनिट टाइम। तो जो वर्क होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टाइम इज दिस, हमको मैग्नीट्यूड ऑफ EMF और इनटू I, इतना हमको वर्क करना पड़ेगा टू ओवरकम दिस इंड्यूस्ड EMF, है ना। जो इंड्यूस्ड EMF क्रिएट हो रहा है, उस जो इस करंट को अपोज कर रहा है, हमको इतना वर्क करना पड़ेगा, तब जाके हमारा करंट इसमें फ्लो पाएगा। तो हम देखते हैं चलिए कि अब लेकिन कुछ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वर्क कर रहे हो तो डेफिनेटली सम पोटेंशियल एनर्जी विल बी स्टोर्ड, है ना। व्हाट दैट पोटेंशियल एनर्जी इज मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? आई विल टेल यू व्हेन वी विल सॉल्व दिस। So let me tell you that this can be written as dW equals to Li di, ऐसा आप लिख सकते हो। तो इंटीग्रल दोनों साइड कर दो, आप इंटीग्रल लगा दो, you will have this total work, और ये इसकी लेंथ सपोज करिए कैपिटल L है, तो L I square by 2. So this work is UB, magnetic potential energy, because you are doing some work that will be stored as magnetic potential energy. So UB is equals to Li square divided by 2. इतना बात समझ में आया कि जब किसी भी हम सेल्फ इंडक्टेंस की बात करते हैं, जब कॉइल में, जब किसी सोलेनॉइड में वो सेल्फ इंड्यूस्ड EMF क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ चेंजिंग ऑफ द करंट, तो उस केस में द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर इज दिस, क्योंकि वी हैव टू डू सम वर्क ना, we need to do some work to and that work will stored as magnetic potential energy. Clear बात? तो आपकी जो वैल्यू आई है, that is UB Li square divided by 2. अब इतना तो ठीक है, आपके मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है। बोल क्या रहा है? Obtain the expression for the magnetic energy stored in the solenoid in terms of magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है? B equals to mu naught and I, याद आया कुछ? ये फॉर्मूला हमने सोलेनॉइड के केस में निकाला था कि कितना मैग्नेटिक फील्ड किसी भी सोलेनॉइड से जनरेट होगा। तो यहाँ पे आप I की जगह में इसको रख दो, B equals to B upon mu naught N equals to I. When you will put this L by 2 and this is B square, let me write this, B divided by mu naught N का होल स्क्वायर। और आपको इंडक्टेंस की, दिस इज सेल्फ इंडक्टेंस, ऑलराइट। सो दिस हैज सम वैल्यू म्यू, हमने सेल्फ इंडक्टेंस के केस में निकाला था, याद करिए म्यू नॉट, यदि हम म्यू नॉट N स्क्वायर A इंटू L कुछ इस तरीके से निकाला था, याद करिए आप, है ना। उसको देखिए पहले, डिवाइड बाय 1/2, तो इसका आपका ये आ गया L की वैल्यू, और ये दिस इज B स्क्वायर B डिवाइड बाय म्यू नॉट N का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो आपका ये आ गया। अब इसको आप सॉल्व करिए, तो आपका जो टर्म आएगा, देखिए आप यहाँ पे AL भी है और मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में भी हम निकाल सकते हैं। क्लियर? तो आप देखेंगे जो इसमें मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हुआ है किसमें? सोलेनॉइड में, बिकॉज ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सो क्योंकि वी हैड टू डू सम वर्क ना अगेंस्ट दिस इंड्यूस्ड EMF,
So that potential energy, magnetic potential energy will be 1/2 आपका n स्क्वायर यहां से कैंसिल हो जाएगा। आपका जब ये सॉल्व करोगे, चलो इसको सॉल्व कर देते हैं अच्छे से, है ना। म्यू नॉट n स्क्वायर a into l b स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू स्क्वायर n स्क्वायर। ये से you cancel, एक म्यू नॉट कैंसिल। So what you get? Your magnetic potential energy is b square divided by 2 mu naught, और यहाँ पे क्या आया a into l. Clear? So this is your magnetic potential energy. Clear बात? इस पूरे solenoid में जो this will have a magnetic potential energy equals to this in terms of magnetic field. ठीक है, तो you can find out for the per unit volume as well. per unit volume में हम देखें कि कितना आपका magnetic energy, magnetic potential energy store होगा. So in that case let me write. आपका ये टर्म समझ आ गया है। अब थोड़ा देखिए कि हम इसको कैसे per unit volume के केस में कैसे लिख सकते हैं। for per unit volume, for per unit volume क्या होगा, you will have this magnetic potential energy per unit volume, ठीक है। so mu b divided by ub divided by v, b की कैसे लिख सकते हैं a into l। so आपका तो ये दिख ही रहा है b स्क्वायर 2 mu naught a into l per unit volume, तो a इधर आ जाएगा, you will cancel out। So per unit volume the magnetic potential energy stored is b square 2 mu naught। तो किसी भी सोलेनॉइड में, किसी भी आपका जो सोलेनॉइड आपने कंसीडर किया उसमें per unit volume the magnetic potential energy जो स्टोर होगी against this induced EMF, है ना, क्योंकि हमको भी कुछ वर्क करना पड़ेगा, तो that will be stored as this value। per unit volume में इतनी एनर्जी आपकी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। क्लियर बात। अब दूसरे में देखते हैं हाउ डज दिस मैग्नेटिक एनर्जी कंपेयर विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अब कैपेसिटर का आपने जो निकाला हुआ था, कंपेयर करना है हमको। कैपेसिटर के केस में आप निकाले थे, क्या निकाले थे 1/2, याद करिए आप 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, कुछ यही था, कुछ इसी तरीके से था, याद करिए आप। So that is 1/2 epsilon naught E square for electrostatic potential, electrostatic energy, है ना, stored in capacitor, stored in ये आप देख पा रहे हो, यदि इसको कंपेयर करिए आप कि this is the magnetic potential energy stored in the solenoid and this is electrostatic energy stored in the capacitor। कैपेसिटर में हम याद करिए, आपको हमने आपको बताया था, तो this is your electrostatic energy stored in the capacitor। if you compare these two, this first equation and this second equation, you are going to have this आप देख डिपेंडेंसी, आप देखिए इस मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की डिपेंडेंसी देखिए, दोनों ही स्क्वायर ऑफ देयर फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये इसमें आप देखिए that UB per unit volume is directly proportional to B square and in this magnetic potential energy directly proportional to E square। clear बात। so it's a very important to understand। तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, आप देख पा रहे होंगे। अब इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए, और भी तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो जब आप पढ़ोगे इस सेल्फ इंडक्टेंस को कैसे इसमें मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है और कैपेसिटर के केस में, और फिर इसको कंपेयर करिए। दैट्स योर ड्यूटी टू वर्क।